So dear students, welcome again in this channel. As I promised in my previous video on AP that I will start in next video the GP. So let us start the geometric progression without wasting any time. So geometric progression, GP. What is a GP? If a number is given to be, suppose A, and a constant quantity is equal to R is given to me, then I can find next term to this term which by multiplying this term by R, that is AR. If I want to explore another next term from this term, then I will again multiply this second term with this R, then I will get AR square. If again I want to know next term, then again I will multiply this term with this constant quantity and I will get AR cube, and so on up to many terms as I want to know. Suppose I want to know the n terms. Nth term या n terms. In this case, if this constant quantity is multiplied with the first term, then the second term, then the third term, then the next term, and so on, the series obtained by doing this is known as GP or geometric progression. Alright? And this constant quantity is known as common ratio and is represented by CR. In arithmetic progression, we added a constant quantity which was called common difference in the previous term to get the next term. That was AP. In this GP, we multiply a constant term R which is called common ratio in the previous term to get the next term. Similarly, multiply this with R, then I will get R square. This is the next term. So there is a common ratio between these two consecutive terms which is R and is known as your common ratio. So this is how we get a geometric progression. So if I want to know what will be the nth term, suppose I want to know here what will be the 100th term, how I will get. You see here, this is the first term, this is the second term, this is the third term, this is the fourth term. A particular phenomena is happening here, that here R I can take as power 0. This is R raised to the power 1. In the first term, the constant quantity's power is 0, that is I can write it as also 1 minus 1, that is 0. In the second term, I can write it as 2 minus 1, that is 2 minus 1, that is R raised to the power 1. In the third, I can write it as power of R as 3 minus 1. In the fourth term, I can write it as 4 minus 1. So फोर्थ टर्म में 1 माइनस किया, थर्ड टर्म में 1 माइनस किया 2 आ गया, सेकंड टर्म में 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया, फर्स्ट टर्म में से 1 माइनस किया तो 0 आ गया. सो nth टर्म के लिए मैं क्या करूंगा? nth टर्म के लिए मैं यहाँ पर करूंगा a r रेज़ टू द पावर, जैसे यहाँ पर माइनस किया है मैंने, यहाँ पर भी इसको मैं माइनस कर दूंगा r रेज़ टू पावर -1. Therefore, to calculate any number of term, I have a formula that is Tn is equal to a r raised to the power n minus 1. This is how I can get this formula. So this is the formula for a term in GP, a r raised to the power n minus 1. So please remember it. In AP what was the formula? In AP, the formula was A plus n minus 1 into d, where d was the common ratio, n was the nth term,
A was the first term. So please remember this formula. Now suppose I want to know the sum of this all series up to n terms, and this is your nth term. Here AR raised to the power n minus 1. That is, I want to know the sum of this geometric series where the common ratio is R. Common ratio is equal to R. What I will do, I will multiply this whole series with this constant ratio R. What I will get here? Sn multiplied by R. then इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? ये तो ए आर था, यहाँ पर ए था, ये यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर आएगा आपका ए आर। तो ए आर को ए आर के नीचे लिखूंगा मैं, ये आया, इससे मल्टीप्लाई करने पर ए आर आया, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ए आर स्क्वायर आएगा, इस ए आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा तो ए आर 3 आएगा, और सब में प्लस का साइन भी आएगा, एंड सो ऑन। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करते चले जाऊंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर आएगा मेरा नेक्स्ट टर्म ए आर रेज़ टू पावर एन, और इससे पहला टर्म आएगा ए आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1। अब मैं क्या करूंगा, इसको और इस पूरी सीरीज को मैं आपस में सब्सट्रैक्ट करूंगा। सो व्हाट आई विल गेट हियर एस एन, व्हाट आई विल गेट हियर एस एन, व्हाट आई विल गेट हियर, I will get here Sn minus R Sn is equal to A, इसके नीचे कोई टर्म नहीं है तो A आएगा, पहले इनके साइन भी माइनस करेंगे और इसका भी माइनस होगा, इसका भी माइनस होगा। यहाँ पर AR1 और इस AR से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास ये टर्म बचेगी। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस ए इंटू आर रेज़ पावर एन, यहाँ से मैं एस एन कॉमन लूंगा, एस एन लीजिए तो यहाँ बचा 1 माइनस आर, दैट इज इक्वल टू ए प्लस, सॉरी ये माइनस आएगा वहाँ से, तो ये माइनस ए इंटू यहाँ से ए कॉमन लिया मैंने 1 माइनस आर रेज़ पावर एन। देयरफॉर Sn will be equal to sum of n terms of Gp will be given by A into 1 minus r raised to the power n upon 1 minus r. This formula is valid only for when r is less than 1. जब r की वैल्यू 1 से कम होगी तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगेन दूसरा फॉर्मूला होगा Sn इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज़ पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1। सबसे पहले आपको आर की वैल्यू देखनी होगी, फिर आपको देखना होगा कि आर की वैल्यू क्या है। अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और अगर वो लेस देन 1 है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर हमें ये दिया हो ये सीरीज इनफाइनाइट है, सपोज कीजिए हमें ये सीरीज दे दिया इन्होंने इनफाइनाइट है, तब हम इसमें इनफाइनाइट टर्म्स का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, आर इज हियर लेस देन 1। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम इसके अंदर, तीनों फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इसके अंदर हमारे ये फॉर्मूलास आते हैं। ये है तब जब आपका आर लेस देन 1 हो और एन टर्म्स फाइनाइट टर्म्स का हमें सम निकालना हो, और ये है जब आपका आर ग्रेटर देन 1 हो, जब हमें फाइनाइट टर्म का सम निकालना हो। और अगर हमें इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है, आर की वैल्यू लेस देन 1 है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। फिर इसमें रिकरिंग डेसिमल का दिया हुआ है कि एक रिकरिंग डेसिमल, जैसे आपका सपोज कीजिए 0.235 के ऊपर यहाँ पर बार लगा हुआ है या डॉट लगा हुआ है, तब मैं इसको लिख सकता हूँ
0.23555, इस टाइप का कोई नंबर हो, इससे भी सीरीज बन जाती है। किस तरह से बनेगी? 0.235 प्लस यहाँ पर आप लिखेंगे 0.0000, फिर 5, फिर इसके बाद नेक्स्ट सीरीज बनेगी इसके अंदर 0.00005। इस तरह से भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाती है। उसका हम जैसे जैसे एक्सरसाइज जब करेंगे उसमें क्वेश्चन आएंगे, उसको कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। अब इसके अंदर आप दूसरा एक चीज समझिए, दैट इज योर ज्योमेट्रिक मीन। सपोज वी आर गिविंग टू नंबर्स सच दैट a and b, and I want to know some mean here that is equal to g. If these three terms are in geometric progression, then the value of g is given as g is equal to square root of ab. How it comes, I will tell you. That the ratio of this term to this term is constant, that is r, and in this term and in this term is again constant, that is r. Therefore, I can write here g upon a is equal to b upon g is equal to r, the common ratio. Therefore, multiplying cross it, I get here g square is equal to ab, and therefore it is equal to g under root ab. Therefore, if three numbers are in GB, then the middle term will be the geometric mean if the series in the progression of these three numbers, and that geometric mean must be equal to square root of AB. Now, if I want, suppose, to insert another mean, now suppose I want to insert two means here, G1 and G2b. If two numbers are given to me as a and b, and I want to insert two numbers in geometric mean in between these two numbers, then how I will do? Consider it that b is which term of this GB. Consider it that b is which term of this geometric progression. This is first, this is second, this is third, and this is fourth. Therefore, T4 is equal to B. फॉर्मूला लगा दीजिए T4 का, यहाँ क्या होगा? A into r raised to power 4 minus 1 is equal to B, और AR raised to power 3 is equal to B, and therefore R cube is equal to B upon A. This is B upon A, और therefore R is equal to B upon A का क्यूब रूट, और मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ। सपोज देखिए, आपको इसके अंदर इंडिसेस का किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, या इंडिसेस के क्या रूल हैं, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर ये आपको नहीं आते हैं तो जीपी के क्वेश्चन करने में जो एग्जाम एक्सरसाइज में दिए हैं उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए अगर आपको नहीं आता है तो अपने हाई स्कूल की बुक से इंडिसेस वाला जो चैप्टर है उसके जो रूल्स हैं उन्हें अच्छे से समझ लीजिए, कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हियर आई टेक दैट इफ I take z raised to the power a into z raised to the power b, मल्टीप्लाई है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, z a प्लस b हो जाएगा। और अगर इस तरह से लिखा हो z raised to the power a अपॉन z raised to the power b, देन क्या होगा? ये पावर z पूरा क्वांटिटी ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, तो z a इंटू z माइनस b, इट विल गिव मी z रेज़ पावर a माइनस b। अगर ये नीचे आए तो ये भी माइनस होगा, जैसे 1 अपॉन z रेज़ टू द पावर b इंटू z रेज़ टू द पावर माइनस a, इट विल गिव मी 1 अपॉन z रेज़ टू द पावर b माइनस a। तो ये बहुत कॉमन है, ये आपको आनी चाहिए। चलिए इसको करते हैं। अब मुझे पहला टर्म मालूम है यहाँ पर, और r कॉमन रेशियो मुझे मालूम हो गया, तो मैं G1 को कैसे फाइंड आउट करूंगा? आई विल फाइंड आउट G1 बाय मल्टीप्लाइंग दिस फर्स्ट टर्म बाय r। देयरफॉर G1 विल बी इक्वल टू a इंटू r, दैट इज इक्वल टू a इंटू b अपॉन a की पावर 1 अपॉन 3। हाउ आई विल गेट G2? I will get
G2 by multiplying G1, that is this term, by R, that is G1 into R, that is equal to A into B upon A की पावर 1/3 into B upon A की पावर 1/3. It will give me A into B upon A की पावर 2/3. अब यहाँ पर एक चीज आती है कि अगर सपोज कीजिए मुझे इसके अंदर एन ज्योमेट्रिक मीन डालने हो, A, G1, G2, G3 एंड सो ऑन, और Gn मुझे यहाँ पर डालने हैं A और B के बीच में. B मेरा ये है और A मेरा ये है. तब मैं कैसे करूंगा? तो जरा इसे कंसीडर कीजिए आप सबसे पहले. यहाँ पर आया 3, मुझे कितने डालने थे? 2. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, R is equal to B upon A raised to the power 1/2 plus 1. तो 2 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 जियोमेट्रिक मीन डालने थे. और यहाँ पर भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज A इंटू B अपॉन A की पावर 1/2 plus 1. ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस वाली टर्म को भी मैं इसी तरह से लिखता हूँ, या इस वाली टर्म को मैं ऐसे लिख दूँ तो G2 मेरा यहाँ पर आ जाएगा A इंटू B अपॉन A की पावर 2/2 plus 1. ठीक है, तो मैं यहाँ पर जैसे 2 plus 1 आया, n टर्म्स मुझे निकालनी है. तो फॉर n जियोमेट्रिक मीन्स R विल बी बिकम, इससे बिल्कुल सिमिलर करते हुए B अपॉन A, अगर यहाँ पर 2 था, 2 जियोमेट्रिक मीन थे तो 2 plus 1 था, n है तो मुझे यहाँ पर 1/n plus 1 आ जाएगा. ओके, इसको आप इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे हमने 2 टर्म के लिए निकाला, आप यहाँ से n टर्म्स के लिए G निकालिए, तो यहाँ पर ये B जो है आपका n+2h टर्म हो जाएगा, और ये फर्स्ट टर्म है. इसी तरह से जब आप यहाँ पर B की वैल्यू जो है यहाँ पर n+2 रखेंगे तो n+2 - 1 दैट इज n+1 आ जाएगा. तो यहाँ से आप यहाँ पर Gn अगर हम इसी तरह से लिखना चाहें तो Gn यहाँ सब हो जाएगा A इंटू B अपॉन A रेज टू दी पावर, यहाँ पर सेकंड था तो सेकंड आ रहा है, G2 हमारा यहाँ पर निकल रहा है, 1 है तो 1 आ रहा है, n है तो n आएगा, n/n+1. तो आप इसको भी ऐड कर लें. या अगर आपको जियोमेट्रिक में निकालना है तो 1/n+1, दूसरा 2/n+1, तीसरा 3/n+1, n/n+1 B/A या R की पावर. तो इस तरह से आप इसके अंदर n जियोमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर सकते हैं. अब जिस तरह से हमने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ली थी, 3, 4 और 5 टर्म्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो इसके अंदर भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हम कैसे लेते हैं वो देखते हैं. consecutive terms in G. फर्स्ट 3 टर्म्स हम कैसे मानेंगे? फर्स्ट 3 टर्म्स मान लीजिए, पहला टर्म A मान लीजिए, कॉमन रेशियो R मान लीजिए, तो पहला तो ये टर्म हो गया, दूसरा हो गया AR और तीसरा हो गया AR². लेकिन जब क्वेश्चन इसमें आते हैं तो हम इनको इस तरह से नहीं मानते हैं. इसके अंदर हम जो मानेंगे वो इस तरह से मानेंगे कि आपका सेट फर्स्ट टर्म आपका ये एक A मानिए, इसके बाद आप AR मानिए अगर आपका यहाँ पर कॉमन रेशियो R है, और इससे पहला एक टर्म मानिए दैट विल बिकम R, A/R. सो इस तरह से फर्स्ट टर्म ये होगा, सेकंड टर्म ये होगा और थर्ड टर्म ये होगा. इससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी. अगर आप इसमें AR² मानेंगे तो 2 अननोन है, 2 अननोन को 2 कंडीशन से निकालना, जबकि पावर्स हो या और क्वेश्चन हो तो वो मुश्किल होगा. तो आप इस तरह से इसके अंदर मानेंगे. अब फर्स्ट 4 टर्म्स, देखिए इसके अंदर हम बीच का टर्म मानेंगे AR,
और इधर मानेंगे ए आर क्यूब, और इससे पहले हम लेंगे ए अपॉन आर, और इससे पहले एक और टर्म लेंगे ए अपॉन आर क्यूब। ये हमारी 4 टर्म्स होगी किसी जीपी में मानने के लिए। तो इस तरह से इसको मानेंगे। इसके अंदर यहाँ पर आर स्क्वायर का हमारा कॉमन रेशियो है। जैसे ही आपका सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो लीजिए, तो कॉमन रेशियो होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। निकालिए, तो ए अपॉन आर और ए अपॉन आर क्यूब। तो यहां से आपका आ गया ए अपॉन आर इंटू ए इंटू आर क्यूब। ये आर क्यूब ऊपर चला जाएगा, आपको आना चाहिए कैसे गया, ए से ए कैंसिल हो गया, आर से यहाँ पर स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पर आर स्क्वायर का कॉमन रेशियो लेकर के ये टर्म्स हम मानेंगे और स्टार्ट करेंगे ए आर से। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये टर्म हमारी आ गई। अब हम इसके अंदर 5 टर्म्स मानेंगे। फर्स्ट 5 टर्म्स कैसे मानेंगे, इसके अंदर हम ये मानेंगे कि ए आर स्क्वायर, आर कॉमन रेशियो लेंगे, यहाँ पर लेंगे ए अपॉन आर और ए अपॉन आर स्क्वायर। तो 5 टर्म हमने देखे आते, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। सो जाहिर बात है कि जो हमारी और टर्म्स होगी उसके अंदर हमें कॉमन रेशियो आर रखना है, उसके अंदर हमें कॉमन रेशियो आर स्क्वायर रखना है, और इसको ए आर से स्टार्ट करना है। सपोज कीजिए मुझे 6 टर्म चाहिए, तो मैं ये वाला पकड़ूंगा, तो यहाँ से हुआ ए आर स्क्वायर सॉरी क्यूब, यहाँ से होगा ए आर क्यूब, फिर ए आर 5। यहाँ से क्या होगा इसके अंदर ए अपॉन आर क्यूब और ए अपॉन आर। तो ये आपकी 6 टर्म्स हो, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये आपकी, और 6। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पर 7 टर्म्स माननी है, 7 टर्म्स हम कैसे मानेंगे, तो हम इसको पकड़ेंगे, यहाँ से वो आया ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, यहाँ से आएगा ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर क्यूब। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 7, ये 7 टर्म्स होते हैं। हम इस तरह से इसके अंदर ऑड इवन का ध्यान रखते हैं कि ऑड के अंदर हमें आर कॉमन रेशियो लेना है और ए से स्टार्ट करना है, और अगर इवन टर्म्स है तो हमें आर स्क्वायर लेना है और ए आर से स्टार्ट करना है, और इसके हिसाब से हम इसके अंदर टर्म्स लिख देंगे, दोनों तरफ लिखेंगे लेफ्ट एंड राइट। तो ये हमारी कंसेक्यूटिव टर्म्स थी, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए और नोट करके रखिए अपने माइंड में, कॉपी के ऊपर भी, ये बाद में आइंदा काम आएंगे। आप चलिए इसके अंदर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। इसके मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लूंगा, बाकी आप कुछ करिए, ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान है, इन्हें आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसका। दिस इज द सम ऑफ सीरीज 1 - 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/3 क्यूब एंड सो ऑन इज कितना है। सो यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि एन टर्म्स का निकालना है या इनफाइनाइट टर्म्स का निकालना है। तो मुझे यहाँ इनफाइनाइट टर्म्स दे रखा है क्योंकि एन है तो दिया नहीं है, ना एन टर्म्स के लिए कहा है। सो हियर a is equal to 1 and r is equal to, how I will find that, second term upon first term, that is second term is -1/3 and first term is your 1, that becomes -1/3 is your r. So sum infinite है, यहाँ पर निकालेंगे, a है less than 1, therefore a upon 1 minus r, that is equal to 1 upon 1 minus 1/3, that will give you 1 upon 1 plus 1/3, and in all it will give 1 upon LCM लूंगा जब इसका, ये हो जाएगा 4/3 and it will give 3/4. So the sum of n finite numbers of this geometric progression is
इक्वल टू 3/4। तो सिंपल क्वेश्चन है, यू कैन डू इट। एक क्वेश्चन इसके अंदर और गिवन है कि द GM ऑफ m/n and n/n is 1। GM, geometric mean of m/n and n/n is 1. Prove it. Is 1. So here are two numbers and I have to find one geometric mean between these two. So अगर मुझे मालूम है कि A B अगर दो नंबर हो, इनके बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन मैं मानना चाहूँ या निकालना चाहूँ, तो दैट इज गिवन बाय √A into B। हियर A की वैल्यू आपकी ये है और B की वैल्यू आपकी ये है। Therefore GM is therefore equal to, for this number is √m/n into n/n, gives me 1, that is equal to square root of 1, that is equal to 1। Therefore this is, ये जो है ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है, इनको आप आराम से अगर आपको फॉर्मूले याद है तो कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। The fifth term of the series, what is the series? The fifth term of the series 0.3 plus 0.06 plus 0.012 and so on is he wants to know T5 की वैल्यू क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं। Here A is equal to 0.3. Calculate common ratio, that is R is equal to second term upon first term, that is 0.06 upon 0.3. Remove decimal, this will give me here 100 and this will give me here 10. 10 goes by 10. Therefore I write here 6/30 और इसे काट लीजिए, that will give me 6 × 6, 6 × 5 = 30, that is equal to 1/5. Okay, so here I get R is equal to 1/5. Therefore T5 is given by, हमें पता है, therefore हमें पता है Tn is given by A into r⁻n−1। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, मुझे 5 है क्योंकि मुझे T5 निकालना है। सो ये T5 इज इक्वल टू A की वैल्यू है 0.3 इंटू 1/5 की पावर n-1, दैट इज 5-1, दैट विल गिव मी 0.3 1/5 4। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। दिस विल बी योर आंसर। Next question is important question. It says that the AM and GM between two number are 15 and 9. Suppose कीजिए I have two numbers. This is your question number 5 at page 26. Exercise 3. Two numbers are A and B. Let the AM between these two numbers AM and GM are how many? He says that are 15 and 9. This is 15, this is 9. So he want to know the numbers. Simple है, आपको अर्थमेटिक मीन आना चाहिए। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हमारा यहाँ पर एक AM हम डालना चाहे दो नंबर्स के बीच में, तो AM is therefore equal to A plus B by 2। मैंने बताया था A B C, तो B is equal to A plus C by 2। if it is, then B is called AM। ये मैंने रिपीट करा दिया। चलिए इसको देखते हैं। दो नंबर हमने A एंड B लिए, तो पहले AM लिखिए इसके। AM is equal to A plus B by 2। AM is 15, therefore 15 is equal to A plus B by 2, और
I get from here a plus b is equal to 30. This is my equation number 1. Now come to gm. If gm between two numbers is given by square root of ab, gm is 9, that will give you under root ab, and this implies ab is equal to 81. So this is my equation number 2. Now by using algebra, I will calculate a minus b. a minus b की वैल्यू क्या हो, और फिर इस a माइनस बी की वैल्यू निकाल के जो भी आएगी, और इस इक्वेशन की हेल्प से मैं a और b की अलग अलग वैल्यू निकालूंगा. ये मेरी इसके अंदर स्ट्रेटेजी है. तो मुझे मालूम है बाय अलजेब्रा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab. ये आपने हाई स्कूल में फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा. तो a माइनस बी हियर इज मुझे फाइंड करना है, और a प्लस बी मुझे यहाँ पर मालूम है कि 30 के बराबर है. तो दैट इज योर इक्वल टू 30 माइनस 4. ab की वैल्यू मेरे पास 81 है. सो यहाँ पर मेरा आ गया 900 माइनस 324. 4 on the 4 into 32. अब 900 से आप 32 माइनस कर लीजिए, 900 से आप 324 माइनस कर लीजिए. ये बचा 6, 9 2 7, यहाँ पर आया 8, 8 से 3 हुआ 5. सो देयरफॉर a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 576, और a माइनस b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 576, which is 24. So here I get a minus b is equal to 24 as equation 3rd. And what I have here, a plus b is equal to 30. a plus b is equal to 30. That is my equation number 2. By these two equations, when I add them, this will get cancelled out. 2a will be equal to 54. That implies a is equal to 27. When I will put the value of a either in this equation or in this equation, I will get b is equal to 3. Therefore, numbers are 27 and 3. So dear guys, आज के वीडियो में इतना ही. इस एक्सरसाइज को अपना से भी ट्राई कीजिए. इसके 1-2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर और हों तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लूँगा. उसके बाद आगे की एक्सरसाइज, इसकी जो है एक्सरसाइज नंबर नेक्स्ट, इससे हम करेंगे. मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी दीजिए. अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. मैं उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.